Good afternoon to all of you. I am Surbhi Duper, Ehsaas Women of Indore, and I welcome you all to this beautiful evening of the Right Circle with Professor Manju Agarwal. The Right Circle, which is a cross-country platform for writers in English language, is an initiative of Prabha Ketan Foundation. These sessions are structured around the life and works of the author, followed by an interaction with the audience. The hospitality partner of the Right Circle in Indore is Sayaji Hotel, courtesy Sujita Dahani ji, our Ehsaas Women of Indore, and print media partner is Nagriya. It is supported by Sri Cement and organized in association with Ehsaas Women of Indore. The Prabha Ketan Foundation is a Kolkata-based non-profit organization founded by the late Dr. Prabha Ketan. She was an eminent literature enthusiast, cultural activist, and philanthropist in 1980s. The foundation stands as a passionate advocate for Indian art, culture, and literature, exerting its influence across more than 60 cities globally. The foundation, we are very happy to have with us Professor Manju Agarwal, and now I would like to call her on the stage so that we can begin our conversation. Please, yes, give her a round of applause. Professor Manju Agarwal is an internationally acclaimed psychologist, author, hypnotherapist, and a happiness cum subconscious mind coach. With over 40 years of experience, she blends science and ancient wisdom to promote well-being and contentment. She has trained over 10,000 professionals, delivered more than 100 talks globally, and helped draft policies related to women and children. She also represented India in UN forums and won awards for social work. She is currently Professor Emeritus and Director of the Center of Excellence for Happiness at Amity University. And with conversation with Professor Manju Agarwal is Ms. Unnati Singh, and I would like to call her so that we can start our conversation. Ms. Unnati Singh. What a beautiful evening. And you are looking stunning. Oh, thank you. The same thing. Thank you so much. So when we come on logies, like I have heard about biology, mythology, but this time we are with psychology. A very different subject, but everybody might be having so many questions in mind when it comes to psychology. So let us start a small conversation with you. I have gone with your book, The Psychology of Self-Talk. It's very beautiful. Thank you so much. Each and every chapter is very motivational, and we get a lot of insight about how we think, how we have to talk, how we have to express ourselves, which is very important. So, I will start now. Sure. Whenever we speak to somebody, always there are few words which always comes in our mind while speaking. Power of words. Yes. Yeah, I have gone through that chapter. So, I want you to enlighten about them. That what is the power of words? Actually, everything is vibration. सब कुछ vibration है. Words भी vibration है. और words में बड़ी powerful vibrations होती हैं. एक मैंने इसमें स्टडी भी कोट की है डॉक्टर मसारू की कि कैसे उन्होंने डिफरेंट बीकर्स में पानी रखा, उनको अलग अलग वर्ड से एक्सपोज किया और फिर जो उनके क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बने उसमें जो जिसमें उन्होंने कहा आई लव यू, थैंक यू टू यू, उनके ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइज्ड फॉर्मेशंस हुए और जहाँ पे उन्होंने कहा था आई विल किल यू, यू आर लाइक हिटलर, वहाँ पे बहुत ही खराब क्रिस्टलाइज्ड, बहुत अगली क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म्स बने. सो व्हिच शोज की पावर ऑफ वर्ड्स में कितनी पावर है. एंड अगर हमारे बॉडी में 70% पानी है, if we keep on telling ourselves I'm not good enough, I can't do this, I'm going to fail, पता नहीं क्या होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, वो मुझे अप्रूव करेगा कि नहीं, या किसी ने मेरी इंसान की हम अपना शेम और गेट के बारे में अपने से बात करते जा रहे हैं, which means these negative words will create energies which are going to make us mentally, physically, emotionally wounded and sick. So all the diseases are actually a manifestation of what we are thinking and feeling inside. And this thinking and feeling is expressed in words. तो अगर हम उन actually this is the crux or factor
common So factor. like you say like the failure and success of life is depending like how we think. Everything. And अगर आपने 2 words में पूरी सब चीज को समेट दिया है सक्सेस एंड फेलियर में, then of course अगर हम डरते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो we are going to attract those vibrations. फिर हमारे एफर्ट उसी तरह होंगे. It's not only just कि imagination से ऐसा हो जाएगा, फिर हमारे एफर्ट्स, हमारे पूरे थिंकिंग, हमारा परिश्रम सब उसी डायरेक्शन में होगा. So like what do you say? What is like about language? How we should select the language, the right language? Again, I think आप जो लैंग्वेज की बात कर रही हैं वो लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजिकल लैंग्वेज ऑफ थॉट की बात कर रही है, नॉट दी मराठी और हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रही है. मदर टंग की बात. एग्जैक्टली. तो ये मैंने इसमें 7 लैंग्वेजेस दी हैं, 7 माइंड क्योर मंत्रास के रूप में. एक शब्द यहाँ पर आया, mind cure. It's a new word for me. I think new for everyone here. Yeah. So mind cure. I want you should tell more about this. जिसको लोग बोलते हैं ना कि ब्रेकिंग द वर्ड संधि विच्छेद, माइंड आई क्योर. एंड देन आई आल्सो राइट इट विद जब पेडिक्योर होता है, मैनिक्योर होता है, आप तो ब्यूटी वर्ड से हैं, तो व्हाई नॉट माइंडिक्योर. हमें अपने माइंड का स्पा करने की रेगुलर जरूरत है. Mind spa. माइंड स्पा. Yeah, That's my wonderful word for foundation us. name is माइंड स्पा. मेरे फाउंडेशन का नेम माइंड स्पा है. सो हम मैनिक्योर कर रहे हैं, पेडिक्योर, इसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर जब माइंड के बारे में कैसे उसको सफाई करनी है, कैसे उसका स्पा करना है, उसकी कितनी जरूरत है, इसके बारे में मुझे लगता है कोई ट्रेनिंग नहीं है बचपन से. ना लोगों को पता है इसकी जरूरत है, ना लोगों को लगता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है. It's one of the most Particular age group you will suggest for this or everyone required? I think from childhood to any age group. Childhood से आपको ये सीखना है. बच्चे का माइंड 0 to 8 years तक तो एकदम क्लीन स्लेट होता है, जिस पर हम लिखते जाते हैं, जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. पर वहाँ से हमको ऑब्जर्व करना है. और फिर जो मैंने इस किताब में देखा एज अ साइकोलॉजिस्ट, 40 years से मैं लोगों से बात कर रही थी, thousands of students, professionals, executives, patients, doctors, सबसे बात किया, तो मुझे ये लगा कि there's lot of pain, there's lot of, and people are suffering, but there's lot of human potential available, and it's actually the thought process and the feelings. पर अब इसको चेंज करना बड़ा कठिन है. लोगों की फीलिंग्स को चेंज करना, इमोशंस को चेंज करना, थॉट प्रोसेस को चेंज करना. तो एक टूल जो मुझे मिला, दैट वाज जो आपकी थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस कैसे होती है, वर्ड से एक्सप्रेस होती है. हम लगातार सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं, अगर हम यहाँ ऑडियंस में भी पूछे, क्योंकि अब तो आप जानते हैं इसका नाम है सेल्फ टॉक. तो सबसे ज्यादा हम दिन भर में किससे बात करते हैं? खुद से बात करते हैं. हम आपसे 2 मिनट, 4 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा किसी से बात करते हैं, पर उसके बाद हमारे सारे एक्सपीरियंसेस लिव इन आवर सेल्फ टॉक. 15 साल पहले हमें किसी ने कुछ कहा था, अगर आज लगातार 15 साल हम उसको रिपीट करते रहे, उसने इंसल्ट किया था, उसने ऐसा किया था, तो वो जो पेन था वो आज 15 साल बाद ज्यादा पेनफुल है बनस्पत जो उस समय था. बट अगर उसी समय आप अपनी सेल्फ टॉक के बारे में अवेयर हो जाते एंड हम उसको चेंज कर देते, ओके ये उसका काम था जो उसने कहा, I don't want to be affected, I don't want to take this energy with me, I want to have a learning. You have to practice. First you have to be aware and then you have to practice. तो वो पेन वहीं खत्म हो जाता. आपकी इस बात से मुझे एक बड़ी सुंदर सी लाइन याद आई, जो लाइक गीत चतुर्वेदी जो अभी नई धारा की कवि है, उनकी लाइन है कि आप जिसकी अनुपस्थिति में आप जिसे मानसिक वार्तालाप करते हो, उससे आपका प्रेम होना तय है. हाँ बिल्कुल, बड़ी सुंदर सी लाइन है. तो अगर if you are doing self talk, I think we will start loving ourselves. So you have to say I love myself. Start. I think this can be the first Mind Cure mantra, जिसमें आप सब आज से ये कहना शुरू करिए, I love myself, I care myself, I accept myself the way I am. ये बहुत ही खूबसूरत सेल्फ टॉक है. I accept myself exactly as I am. I love myself. उसके साथ थोड़ा सा अपने को हक भी कर लीजिए, तो क्या मजा आ जाएगा आपको. Wow, बहुत very beautiful mantra you have chosen. But I always feel whenever any author writes something and there are a lot of stories inside,
that really inspire you? I've seen a lot of stories in your book. Or in one story I was just reading and there was a word Hawaiian technique. Hawaiian technique. How you want to describe it? थोड़ा you want to tell our audience also. Actually, Hawaiian technique मैंने बहुत सारी therapies खुद भी सीखी हैं because I am basically a learner and I love learning. मैं अभी भी I'm 70 years old and I love learning. अभी भी मैं courses देती भी रहती हूँ, करती भी रहती हूँ. तो हवाईन टेक्निक का भी मैंने एक कोर्स किया था और बहुत सारी EFT का बहुत सारे कोर्सेज किए, फैमिली कॉन्स्टिलेशन का, हिप्नोथेरेपी का, पास्ट लाइफ में जितने भी कोर्सेज किए. और मैंने अपनी भी एक थेरेपी निकाली है, मेडिटेटिव सेल्फ टॉक थेरेपी, जो कि ये सेल्फ टॉक एंड मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है. इट हैज बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव थ्रू रिसर्च. Easy for anybody to accept it and take it in our regular life and practice it. If you're willing, first you have to be willing. If you're willing, it's very easy. तो अगर आपका इंटेंशन है, विलिंगनेस है, तो हर चीज आसान है. तो आप सीख भी लोगे, अपना भी लोगे, करना. I think it's a life-changing day today for all of us here. Lot of new things you all are आपने learning. हवाईन टेक्निक की बात करी थी, तो हवाईन टेक्निक में ह्यू लैंडेड इन्होंने ये हवाईन टेक्निक दी थी और इनको क्या हुआ था, एक हॉस्पिटल में बुलाया गया था जहाँ पे बहुत सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स थे, बहुत बहुत सीवियर लेवल के थे, क्रिमिनल्स भी थे, जिनके पास कोई जाना नहीं पसंद करता था. तो बहुत सारे डॉक्टर्स आए, बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आए, बट नोबडी कुड हेल्प देम. तो यूलेन आए, he did not meet any of the patients. He would sit in his office. He will look at the files of the patients and he will try to connect with them how I am feeling about them. And he will say it 4 lines. ये एक आपका दूसरा मंत्र हो सकता है which you can carry home. So this is a take home. I'm sorry. ये 4 लाइन्स में बहुत पावर है, किसी भी तरह बोल सकते हैं. इसकी टेक्निक अगर आपको कभी सीखनी होगी तो उसके अलग I want to repeat with you. Please do. Yeah, please. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. And you are actually saying it to yourself. You are actually saying it क्योंकि जो inner children होते हैं, inner children में मैं भी बहुत ज़्यादा इसको use कर सकती हूँ. After inner child healing, हम जब ये करते हैं तो inner child healing बहुत perfectly होती है. So there is an inner child in everyone. Yeah. Everyone, each of us, and a lot of them are wounded inner children, rejected inner children, ignored inner children, guilt inner children, shame inner children. उनको जब हम हील करते हैं तो उसके बाद जब ये मंत्रों को साथ में ऐड करते हैं, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. People have started using it for their gadgets. Laptop खराब हो गया, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. And many people have said, वो ठीक हो गया उसके बाद. Traffic में फंस गए, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. For sleeping, it works very well. When you're going to sleep, you start telling yourself, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. And थोड़ी बार भी आप बोलेंगे, आप देखेंगे, you will go into deep sleep very easy. Very beautiful. Or very easily you have described everything because it's easier for us to understand this. So I will keep on saying that now from today. Okay. So when we are dealing with so many people, we are going outside our house and when we meet different kind of people, we meet lot of people. Sometimes we feel they are very toxic. Yeah. This word came. Yeah. So like, what do you want to tell about the toxic people? What do you want to know about it? I want to know everything about them. How to identify them, how to deal with them. Okay, you said how to identify with them. A person who is toxic may be toxic with me, but may not be toxic with the other person. ये भी possible है. Some people are toxic with everyone, but I think we have to be aware कि मेरे साथ कौन toxic है. And toxicity को पहचाने कैसे? अगर कोई भी व्यक्ति आपकी self esteem को लो कर रहा है, डाउन कर रहा है, आप उसके सामने छोटा फील कर रहे हैं, आप उसके सामने नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड या स्मॉल फील कर रहे हैं, that means that person is toxic. And try your own techniques, but अगर नहीं होता keep away. देखिए स्ट्रेस, ये भी एक तरह का स्ट्रेस है जो टॉक्सिक पीपल हैं. स्ट्रेस के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं कि either master the stress, यानी आप या तो सिचुएशन को चेंज कर लीजिए या खुद को चेंज कर लीजिए. बहुत बार सिचुएशन को चेंज करना संभव
नहीं होता। तो आप खुद को चेंज कर लें, आप उस व्यक्ति से खुद दूर हो जाइए। बट बहुत बार टॉक्सिक पीपल ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी कस्टोडियन है, वो आपके पेट्रन्स हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बट दे मेक यू फील वेरी स्मॉल लिटिल। तो ऐसे लोगों को दिमाग में आ रहे हैं, उनसे दूर रहिए, आप उनसे दूर रहिए, अवॉइड कर दीजिए उनको, एंड डोंट टेक देयर एनर्जी विद इन यू। दिस कैन बी अ थर्ड मंत्र। कोई भी आपको टॉक्सिसिटी लगे, you just say I give your energy back to you and I take my energy back from you. This self-talk also works like magic. But sometimes these toxic people, they are very fond of us. Oh, yeah, they love us. Why they are toxic? Because उनका पर्पस पूरा हो रहा है ना। They want to हम feel उनको vampires बोलते हैं, like वो पावरफुल, हर व्यक्ति अपने को पावरफुल फील करना चाहता है। हर व्यक्ति ये प्रूव करना चाहता है कि हम आपसे बेहतर है, ज्यादा बड़े हैं। तो वो आपको कमतर दिखा के खुद को पावर लेना चाहते हैं। so they don't want to leave you, so we can make them feel that you are very powerful. You can make them feel that I don't care for you. You don't bother me. You don't make me feel small. अगर आप इस लूप में फंस गए, वो पावरफुल और हम कमतर, तो वो लूप चलता रहेगा। उस लूप से आपको बाहर आना है। When we are talking about toxic people, एक छोटी सी चीज साइकिल चल रही है मेरे दिमाग में। Sometimes what happens that when we are doing any kind of work or anything, so many people associate with us, and they don't want to take any leadership. They don't want to take any responsibility, but they love to blame. Yeah. So like आपका मैंने बुक में से एक वर्ड पढ़ा था, blaming is easy. Taking ownership is beneficial. It was very beautiful. Yeah. Thank you for quoting this line. I also love this line. It connected with me. Yes. That's Blaming is easy and taking ownership is beneficial. तो अगर कोई भी चीज में हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, मान लीजिए हम फेल हो गए एग्जाम में और हमने कहा वो टीचर की गलती थी, वो बायस्ड थी, एग्जामिनेशन पेपर कठिन आया, so what is the chances of me improving and doing better in next exam? Zero. But if I find कि पेपर कठिन था, now I am going to prepare myself how to deal with difficult question papers and what kind of difficult papers are likely to come. So I am going to prepare myself. I take the ownership. पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट था ना, मेरे लिए केवल नहीं था। अगर पेपर डिफिकल्ट था, तो अगर हम ओनरशिप लेना चाहे, मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में कि कोई मार के चला जाता है, मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं, और हम ये कहते हैं उसकी वजह से उसने मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी। Where the blaming is absolutely justified, but at the same time, how it's going to benefit you? वहाँ हम ये सोचें कि अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कहीं शायद मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में था, या जिस भी स्पीड में था, अगर उससे कम स्पीड में रहूंगा तो आगे इन मूर्खों की गलतियों से अपने को मैं बचा सकता हूँ। Responsibility, taking the responsibility for every small thing, in every small act. Right. The moment you start taking responsibility, you feel better inside. Your mind becomes better, your health becomes better. The moment your mind becomes better, your physical health automatically becomes better, because it secretes the hormones, neurotransmitters. आपके पास सारी मेडिसिन है माइंड में, जो आप बाहर से लेते हो ना, वो सारी मेडिसिन अंदर है। कैसे उनको हम एक्टिवेट करें? The way you think, they start activating the same way. Wow, मैंने आपको एप्रिशिएट किया, बहुत सुंदर लग रही है, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान है। जैसे ही आपके चेहरे पे मुस्कान है, आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो गया, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई, और जैसे ही आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई, दिस इज अ रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, तो आपके जो है बेटर हार्मोन्स, बेटर सर्कुलेशन। यहाँ मुझे एक चीज दिमाग में आई, अगर हमको सोसाइटी को इम्प्रूव करना हो, तो अगर हम लोगों को अप्रिशिएट करें, तो आई थिंक इट विल स्प्रेड पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है आपकी। और डोपामाइन रिलीज होगा आपका शुरू हो गया डोपामाइन। आपकी इतनी सुंदर सुंदर स्टोरीज पढ़ी हैं, लाइक लॉट ऑफ
of stories I've gone through, and one story was about it's a real story, but Yeah. you changed the name, Yes. Nidhi and Mona. But the question is here: why you kept your name Mona? आपका Nidhi क्यों नहीं? Actually, मेरा nickname मोना ही है. Oh, My sister calls me Mona. okay. So tell us more about Nidhi and Mona. I think you वाली story है ना जिसमें relationship का जी, जी. blaming वाला ही चल रहा था. बिल्कुल. So you want to hear I want that to story? yes. Okay. Okay. It's a real life incident. जहाँ मैंने एक छोटी सी पार्टी होस्ट की थी. मेरे हस्बैंड की 60th बर्थडे थी. तो वो एक छोटा हॉल था. It was a very close people जिसमें करीब 10-15 लोग accommodate हो सकते थे. मेरी एक बहुत close friend है. उसकी daughter and son-in-law भी आ गए थे उसी समय, जो मुझे पहले नहीं पता था. And actually उसके son और daughter-in-law भी थे. तो मैंने उसको बोला कि तुम आ जाना. I didn't invite the 4 more members. 4 means 6 उनके बच्चे भी थे, 7 members. So I didn't invite them. But they felt really offended and they stopped talking to me. They just stopped talking to me. They will not talk to me. She was a very close friend of mine. तो अब मेरे को बड़ी परेशानी हो, because मेरी रिलेशनशिप किसी से डिस्टर्ब हो जाए तो मुझे बहुत परेशानी होती है. तो मैंने कुछ दिनों बाद फिर मैंने I just encountered her in a park. So I just called her, come here, now let me call her Nidhi only. गलती से ऐसे आप उसको रियल भी नहीं जानते होंगे. मैंने उसको बोला और बोला कि why are you not talking to me? Instead of just taking या कि ठीक है बात नहीं करनी, जाओ तुम भी जाओ मैं भी जाती हूँ, आप कभी बात नहीं करेंगे. I thought let me. You invest a lot of time in that relationship. Yes. You cannot let them go like that. Exactly. We should talk. We should talk. We should confront. We should accept, and there's nothing wrong in saying sorry. Because Manjuji, I want to add on one more thing here. Sometimes we take out time from our family. हम अपने family time को invest कर देते हैं कई relations में. ऐसा होता है. So like that time also when we are facing these kind of issues, we should definitely sit and talk. That's important. Yeah. And always I think अगर हम किसी से जाके ये बोलते हैं I'm really sorry if I hurt you although I didn't have an intention. आप देखिए इक्वेशन तुरंत बदल जाता है. तुरंत इक्वेशन बदल जाता है. आप ऊपर आ जाते हैं वो नीचे हो जाता है. जबकि हमें ऐसे लगता है अगर हम किसी से जाके सॉरी बोलेंगे तो लोग सोचेंगे ये तो गलत है या इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है या इसकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है. पर ऐसा होता नहीं. The equation becomes different. Very good. So like when we are talking about that, then so many things in life goes on. Sometimes we take wrong decision also. Few people think they should end up their life because they are not worth of living also. ऐसा होता है sometimes. इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है सेल्फ टॉक का. बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि जो भी हम देखिए एक्शन करते हैं उसके पहले हमारी थॉट्स हम एक्सप्रेस करते हैं सेल्फ टॉक में. हमारे थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स एंड फीलिंग्स क्रिएट एक्शन. तो ये लाइफ एंड करने के पहले आप बताइए उसकी क्या सेल्फ टॉक होगी. जो अभी आपने एक उदाहरण दिया, द लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. या मान लीजिए कोई फेल हो गया. आईआईटी में कितने आप लोगों ने देखा होगा I failed my father, I failed my parents, I failed my husband, I failed my family. So many questions goes that on. I don't want to और live कोई now. रिजल्ट आने के पहले ही कर लेते हैं क्योंकि दिमाग में इतना चल रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं. अगर फेल हो गया फिर वो स्पाइरल होता जाता है. अगर फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, किसी सोसाइटी में हम किसी लाइफ नहीं रहेंगे. दे हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी एंड इट्स बेटर टू एंड द लाइफ दैन टू लिव. इस तरह के आपके डायलॉग्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं. द मोमेंट लेट मी एंड द लाइफ डायलॉग विंस. You do that. Excuse me. For us, I'm a little inquisitive to know the end of this story. Yes. Which was left to you. Yeah. नहीं तो फिर वो तो वो आई. फिर हमने पार्क में हम लोग बैठे एक बेंच पे, हम लोगों ने शेयर किया. हमें भी क्या हो गया यार, तुम बात नहीं कर रही हो आजकल. I just asked like this. तो फिर then she said she accepted because she was suddenly caught and she accepted कि ऐसा हुआ था. हमने कहा you know the reason. बोले हाँ मुझे पता तो है. मुझे पता है तब ऐसा क्यों फील कर रही हूँ. And I'm really sorry अगर ऐसा हुआ. And but मैं भी मजबूर थी. So things sorted out and we have become, now we are very close friends again. So nice. So it's all about word of power. Yeah. So whenever we think that we can say sorry, we should say sorry. We should say sorry. We should say again. We can repeat those 4 words. I'm sorry. Okay. Please I'm forgive sorry. me. Please forgive me. Thank you.
Thank you. I love you. I love you. And it is really not necessary to say it in front of you loudly. You can say it in your mind also. अगर आपको नहीं मन कर रहा है उसके सामने जाके Sometimes we are sorry with ourselves also. yes, you should say sorry to yourself and you should forgive yourself. अब मान लीजिए आपने कोई गलती कर ली और उसके बाद वो इनर चाइल्ड जो है आपका बहुत परेशान कर रहा है, उस इनर चाइल्ड को बोलिए I'm really sorry if I made this mistake. Please forgive me and thank you for coming back to me. I love you. So when we are क्योंकि talking, इनमें वाइब्रेशंस हैं, आप उसके सामने नहीं भी बोलेंगे तो आपकी वाइब्रेशंस जा रहे हैं वहाँ. And please trust that your vibrations are going there and definitely there will be a change. 100% change. wow. So power of word, the way we are talking about it, is really very powerful. So there is one more story about the power of word only, about Tansen, the musician. Like he used to sing and you can see the lamps were lighting and all like that. So how that came in your mind? I don't know मेरा words पे काम बहुत पुराना है. In fact 2000 में मैंने start किया था gender bias in language. I have been the director of PP Mahila Samakya. It's a very powerful. We want to know about that also. Women empowerment. Yes. Women empowerment का बहुत strong program था जिसमें नारी अदालत से लेके residential schools of children 24 district में thousands of villages में चला. पर यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं वो कल भी आभारी थे, आज भी आभारी हैं. I think we all have to be abhari to each other. Yes. तो मैंने 2000 में करीब एक कैंपेन शुरू किया था जेंडर बायस इन लैंग्वेज के ऊपर, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में अमेरिका वगैरह सब जगह गया था. अमेरिका की न्यूज चैनल पे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आया था. तो फिर उस समय प्रेसिडेंट कलाम थे, 2002 की बात है. ही वाज कमिंग 2004. He was coming to Lucknow. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया. मैंने कहा want to meet you. तो उनके पीए ने कहा आप इतनी लेट कह रही हो, सवाल ही नहीं उठता मिलने में. कहा तो इनके मिनट टू मिनट प्रोग्राम 6 महीने पहले से स्टार्ट हो जाते हैं. तो मैंने कहा आप उनको बता दीजिए कि मैंने इस पे कैंपेन किया है जेंडर बायस पे, और आपका जो पद का नाम है राष्ट्रपति उसमें भी जेंडर बायस है. तो यू मस्ट चेंज इट. यू मस्ट चेंज इट. और पार्लियामेंट के विमेन को भी हमने काफी लोगों को भेजा था कि because it is symbolic. Of course, one word change is not going to change anything. और इसकी भी हिस्ट्री थी, हमने वहाँ से शुरू किया था. It came one time in my mind when we go to temple, all the priests are there and they are male. All of them are male. So a lot of restriction when it comes to temple are made by men only. Like that, what I felt. Yeah. Please carry on. So उसमें हमने एक एक्चुअली गेम स्टार्ट किया था जिसमें हमने कहा ये 8-10 वर्ड्स चुने थे कि इसका जेंडर न्यूट्रल वर्ड बताइए. एंड वर्ड्स वर लाइक रखैल, क्या ये रखैल है, करोड़पति है, लखपति है, सुहागन है, विधवा है. कि विधवा तो नहीं लिया था, सुहागन है. हमने कहा इसके आप जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स बताइए या ऑपोजिट्स बताइए. और बड़े दिग्गज हिंदी के आए, बोले अरे मैम अभी हम बताते हैं आपको. फिर पूरी रात परेशान होते रहे. दूसरे दिन आए कि हम तो कुछ सोची थी शब्दावली नहीं है क्योंकि उसकी सोच नहीं है. इसलिए removing bias in the language is very important to create a gender neutral or a positive society. तो इसी संदर्भ में हम फिर उनसे मिले. प्रेसिडेंट साहब ने फिर हमको टाइम दे दिया भाई. क्या टाइम नहीं था. फिर उन्होंने शायद उनके पीए ने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम एयरपोर्ट पे जाते समय टाइम निकाल के उनसे मिलेंगे. And he gave me 3 minutes, but I talked for 15 minutes with him. I had a discussion. It's a beautiful moment of my life. कलाम साहब से मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है. We are very proud of you. Very proud of you that you are here today. So like when we are talking about self-thoughts, self-talks, what is the main practice which everyone can do at home? 2-3 तो मैंने अभी बताया आपको. जी. आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें 7 हमने स्टेप्स इसीलिए दिए हैं. And this is a practical guide which is Finding your mantras. और फिर बहुत सारी स्टोरीज भी है ना, अमिताभ बच्चन की, अरुणिमा सिन्हा की, विक्टर फ्रैंकल की, कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में जाके, in fact pain is inevitable but suffering is a choice. Wow.
pain is inevitable, but suffering is a choice. So I wanted to write this book to give this choice to people. कि आपके पास ये choice है और आप अपनी thoughts and emotions को direct बदलने की बात सोचिए. Just be aware about your what you are talking to yourself, inner voice. आप जो शब्द बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अपने से, उनको आप लिख लीजिए, अवेयर होइए और फिर उनको कैसे चेंज करके, ये हमने इस पूरी बुक में स्टेप बाय स्टेप दिया है. जर्नल है जो आपकी माय हैप्पीनेस जर्नल है जिसमें हर मंत्र को आप कैसे अप्लाई करें. सो देयर इज नो शुड इन दिस बुक. आपने पढ़ी है, बहुत खूबसूरत बुक है. नो शुड नो वुड, ये करना चाहिए ऐसा इसलिए होता है. कोई थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, but indirectly बहुत सारे साइंस भी. Because sometimes everybody is having their own philosophy. सबका अपना दर्शन होता है. आपका जिस तरह जैसा दृष्टिकोण होगा वही आपका दर्शन बनता है. But इसमें आपने जो बताया है that is very easy to understand. Very easy to understand. एक क्लास का बच्चा भी अभी एक मेरे पास वो आया कमेंट, उन्होंने ओल्ड एज होम में लिया था ये बुक. तो उन्होंने कहा इवन तो सीनियर हो गए उनकी मोरल बूस्टिंग हो गई इस किताब पढ़ के. आपने मुझसे पूछा था उसके बारे में, तानसेन के बारे में. I think many of you must be knowing the story of तानसेन. सबको पता है. But we want to listen your person. तानसेन की स्टोरी मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि अगेन इसमें मैंने बहुत सारे गायत्री मंत्र के बारे में दिया है, किस तरह से गायत्री मंत्र से टिटेनस, पार्किंसन ये सब डिजीजेस इंप्रूव करती है, किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है. So in the first 2 chapters I have established scientifically how the words have power. And तानसेन की स्टोरी भी उसका एक पार्ट है कि तानसेन ने जब राग गाया, and I wanted to give it because this is pure Indian रागा सिस्टम की बात है कि हमारे सारे राग जो हैं उनका एक टाइम है और उनकी एक पर्टिकुलर पर्पस है गाने का. यमन राग कब गाना है, भैरवी कब गाना है, दीपक राग कब गाना है, मेघ मल्हार कब गाना है. तो जो दरबारी थे अकबर के कोर्ट में बहुत चलते थे तानसेन से, तो उन्होंने जो है अकबर को लगा दिया, फुर्री लगा दी कि ये तो दीपक राग गा सकते हैं. बड़े दिनों बाद ये वर्ड सुना, फुर्री लगा. ये तो दीपक राग गा सकते हैं. दीपक राग गाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो तानसेन समझ गए उनके इंटेंशन, तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए. फिर उन्होंने अपनी, मना तो नहीं सकते सुल्तान है, तो उन्होंने अपनी डॉटर को मेघ राग सिखाया, मेघ मल्हार सिखाया खुद, और उनसे बोला कि जब ये वो बढ़ने लगे तब तुम मेघ मल्हार गाओगे. तो उन्होंने दीपक राग गाना शुरू किया. तो धीरे धीरे वहाँ पे गर्मी बढ़ने लगी और बहुत ज्यादा लैंप वगैरह जलने लगे, दिए जलने लगे. तब उसकी और लपटें निकलने वाली थी या थोड़ी निकलनी शुरू हो गई. तब उसकी डॉटर ने मेघ मल्हार गाया तो बरसात होने लगी. सो दैट इज द पावर ऑफ वर्ड्स. जो हम यज्ञ में जितने मंत्र बोलते हैं वो पावर ऑफ वर्ड्स है. उससे हम पूरा बरसात करवा देते थे यज्ञ से. तो वो मंत्रों की जो पावर है, यानी वर्ड्स की पावर है, रिदम की पावर है, कॉम्बिनेशन की पावर है, वाइब्रेशन की पावर है. एंड दैट वाज गोइंग इन माय माइंड बिकॉज़ सेल्फ टॉक के ऊपर बहुत कम बात है. साइकोलॉजी में भी यहाँ बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं. सेल्फ टॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. तो उसी फिर मैंने ये कुछ हमने कहा स्टोरीज देंगे तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा. They can relate with it better. तो तब मैंने इसमें तानसेन की एक स्टोरी डाली. सुंदर स्टोरी थी. And when I was reading, हमने उसमें ये भी समझा कि बहुत पहले, कई सालों पहले, जब हम लोग जाते थे, कबीरदास जी, हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है उनके बारे में. उनका हर दोहा इतना अच्छे है. अगर आप अपने जीवन में एक दोहे को भी ले लेंगे तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी. उनका एक आपने बड़ा अच्छा दोहा है जो मैंने नहीं पढ़ा था, मेरे लिए न्यू था. It was new for me. जहाँ आपने बोला है कि कबीर विषधर बहु मिले, मणिधर मिला ना कोई, विषधर को मणिधर मिले, विष तज अमृत होए. बहुत सुंदर. Thank you so much. Yeah, it was very. I think this will change my life from today. Oh my God. Seriously, I am taking this with me for my entire life, and this is very beautiful. कि अगर एक मणिधर मिल जाए तो विष भी अमृत हो जाता है. Exactly. जी. अब जैसे बुद्ध थे, उनका ऑरा जो था वो 2 किलोमीटर का ऑरा था.
Wow. And therefore the people will get attracted and will come to him and surrender themselves. और हम लोग तो सेंटीमीटर में ही काउंट करने लगते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए तो उन्होंने करोड़ों को ठीक कर दिया, करोड़ों को सद्बुद्धि दे दी। अदरवाइज अगर हमारी वाइब्रेशन लो है और एक हम गलत आदमी से मिलते हैं तो हो सकता है हम उसकी जो है टॉक्सिसिटी सीख लें। बट अगर हम अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई कर दें कि जब हम किसी से मिले तो वो हमसे इन्फ्लुएंस हो सके, ना कि हम उससे इन्फ्लुएंस हो। But I have lot of example like that. हैं ऐसे examples। इतने mind change देखे हैं, सच बता रहे हैं आपको। I've seen that thing। नहीं मस्त है, तभी तो ये लिखाई है उन्होंने। बहुत ही अच्छा लगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग का टॉपिक आता है जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, साइको एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं, एक वर्ड आता है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, सबको इंटरेस्टिंग लगता है और लोग डरते हैं, हिप्नोटिज्म। अभी इस समय मैं थोड़ी हिप्नोटाइज हूँ आपसे। तो आप देखिए आप हिप्नोटाइज्ड हैं, बट आप एकदम नॉर्मल हैं। You are absolutely in control of yourself, your mind, body, everything. So hypnotherapy, I think you are absolutely in control. Your book worked on me. मैंने पहले पढ़ लिया। That's why. So hypnotism अलग चीज है, hypnotherapy अलग चीज है, and hypnotism is usually used stage show वगैरह में। इन लोग जो है अब उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ hypnotism होता है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, but hypnotherapy is basically अगर आप सब मेडिटेशन में विश्वास करते हैं, करते हैं ना? So meditation क्या है? Meditation is an access to your subconscious mind. और इसीलिए please this is also something you can take away. Meditation अगर आप बहुत नेगेटिव मूड में हो तो मत करिएगा। लोग कहते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, मेडिटेशन कर लीजिए, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड के जब रास्ते खुलेंगे, बिकॉज माइंड में लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड की लेयर मुश्किल से 10% है। 92% से 88 to 90% आपका different layers है which are deeper, subconscious, unconscious, primitive mind, past life mind, memories, बहुत सारी layers हैं। तो subconscious mind आपका एक critical filter होता है conscious and subconscious mind के बीच में, जो आपकी चीजों को अंदर जाने से, जैसे दरवाजा होता है, गार्ड होता है ना, हर को अंदर नहीं जाने देता, तो जो चीज मैच करेगी, जो उसके क्रेडेंशियल्स मैच कर जाएंगे तब अंदर जाने देता है। तो सबको like the ID card, yes, तो वो आपको रोकता है अंदर जाने से। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो वो क्रिटिकल फिल्टर का द्वार खुलता है, तो अगर आपकी नेगेटिविटी है वहां पे तो वो भी अंदर चली जाएगी। So it's hypnotherapy के through we just access your subconscious mind, we open that critical filter, और subconscious mind में pleasure and pain की दो तरह की फाइल्स होती हैं। जो फाइल्स वहाँ रह गई, जैसे सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, अगर उसमें जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही आपका फंक्शन होगा, वैसे ही आप बिहेव करेंगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर की तरह होता है और वो आप ऑटो पायलट मोड में काम करते रहते हैं। तो प्लेजर की फाइल आप जैसे मान लीजिए सिगरेट, जब आपने पहली बार सिगरेट लिया, गुलछर्रे उड़ाए, छल्ले उड़ाए, और एक लड़की ने आपको देख के मुस्कुरा दिया, तो वो जो प्लेजर की फीलिंग है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। बहुत सुंदर बात बोली आपने। सही। और बहुत सारे आप इन ग्रुप हो गए, कुछ लोगों का पक्का बड़े आज तो तुमने जंग जीत छा गए। तो वो सारा प्लेजर के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। उसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड रोज कहता है नो सिगरेट नहीं पीना है, लॉजिक लगाता है, एनालिसिस लगाता है, पर आप सिगरेट नहीं छोड़ पाते बिकॉज वहां पे वो प्लेजर फाइल है इनसाइड। सो हिप्नोथेरेपी में हम उस जाएंगे, उस प्लेजर फाइल को पेन में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही हम उसको पेन में कन्वर्ट करेंगे आपकी सिगरेट बड़ी आसानी से छूट जाएगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड से आप गाइडेड है, आपका बिहेवियर ऑटो पायलट। आपका दिल धड़क रहा है, आपकी जो है आप सांस ले रही हैं, आर यू यू नॉट डूइंग एनीथिंग वॉलंटरी, ऑल दीज थिंग्स आर गवर्न्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। वहां पे है स्टोर उसके प्रोग्राम्स हैं, तो वो सब होता जा रहा है। अगर आपकी सांस बदल जाती है, जब आप दुखी होते हैं आपकी सांस बदल जाती है, आप सुखी होते हैं,
हैप्पी होते हैं, परेशान होते हैं, एंशियस होते हैं, हर समय आपकी ब्रेथ कीप्स ऑन चेंजिंग, फिर अलग दूसरा फील्ड चला जाएगा। सो नेक्स्ट बुक आएगा तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, लाइक व्हाट इज योर नेक्स्ट बुक अबाउट? दिस इज ऑन meditative self-talk therapy. It's almost ready, and इसको हमारे 2 research students ने recently submit की, and they have found it extremely effective. जिसमें self-talk and meditation को, so it's an first Indian therapy, totally indigenous Indian therapy for the first time, found to be research evidenced very effective. It is safe to practice. Extremely safe. But 100% safe, 200% safe. Or hypnotherapy is also very safe. Hypnotherapy is also very safe. But of course, जो कर रहा है उसकी intention. अब फिदायीन भी hypnotherapy से तो फिदायीन बन जाते हैं ना। उनको जिस तरह से उनके subconscious mind को इस तरह train कर देते हैं, आप अपनी सबसे precious thing life दे देते हैं. So they have that intention. आपकी अगर अच्छी intention होगी तो आप help करोगे. This is all about the way you think, the way you are thinking from yourself. Hypnotherapy? About the talk and self-talk. Self-talk is about what you are talking to yourself. Is actually expression of your thoughts, which actually determines your feelings, and the feelings determine your actions. That is the path. Okay. I think lot of questions. 60 to 70,000 thoughts, or 60 to 70,000 sentences or words you are speaking in one day. 60 to 70,000. And ये इनमें से 90%, 90 to 95% are going to be same as yesterday. आज भी आप वही thoughts, वही words, वही sentences use करेंगे जो आपने कल use किए थे, until unless you become aware and you break the chain. तो इस chain को break करें, क्योंकि जो आपने बोला उससे आपकी thoughts आई, feelings आई, actions आए, आप ज़्यादा depressed होते चले जाएंगे, आप ज़्यादा happy होते चले जाएंगे, ज़्यादा guilt में आते चले जाएंगे. But in order to break that chain, the best and the easiest, best नहीं easiest हम कहेंगे, easiest है तो best हो ही जाएगा. Easiest thing is to break this chain by being aware of the words you are using. Be aware of the words I am using to express my thoughts. Because words are not affecting other people, they're affecting us also. They are mainly affecting us. Mainly affecting us. But आप दूसरों की भी अगर शब्दों को सुनना शुरू करेंगे तो वो भी बहुत कुछ सेल्फ टॉक से आ रहे हैं, तो आप उनको भी समझ सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को और हेल्प भी कर सकते हैं. Very nice. So I think lot of questions are here. I can see lot of curious eyes looking at us, especially at you, Manju ji, because they want to ask. So we are inviting questions. So you can raise your hand. We'll give you mic. Good evening, ma'am. I'm Jigyasa. I'm also a clinical psychotherapist. Welcome, welcome, Jigyasa. I have a question. In your book, you bridge the gap between ancient wisdom and scientific evidence to promote contentment. So, as the field of psychology move towards nowadays, it's increasingly towards integrated well-being. We are coming up with a lot of integrated well-being, where stars are coming up for mental health and all that. What do you believe? The question is now, what do you believe is the single most important missing link in how we currently treat professionals, Okay. or draft policies to address the global happiness crisis? जिज्ञासा, तुम बहुत जिज्ञासु हो. That's my name, I guess. तुमने 4 या 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में डाल दिए. So I think I will answer your. I think the crux of your all the questions is कि हम कैसे train करें आज के professionals. The missing link, because Missing link. even in the policies, you have been a part of Policy that. एकदम अलग चीज है, अभी उसपे बात में आएंगे. Okay, we'll take it on. मान रहे हो? तो अगर आप मिसिंग लिंक की बात करें तो जो क्या चीज मिसिंग है, अभी हमारा जो करिकुलम है बीए का, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी में तो ऐसा कोई करिकुलम है नहीं, वो तो वेरी स्पेसिफिक होता है.
आपके करिकुलम में देयर इज लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन थ्योरीज, लर्निंग की थ्योरीज क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है, परसेप्शन की थ्योरीज क्या है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है, आपकी बायोलॉजी क्या है, बहुत सारी इस तरह की थ्योरीज है। और जो थेरेपीज भी हैं, जो डिफरेंट थेरेपीज हैं, चाहे वो डीबीटी है, चाहे सीबीटी है, उनको थ्योरेटिकली ज्यादा पढ़ाया जाता है। लोगों ने पढ़ के निकले, पीएचडी किया, टीचर बन गए, और टीचर बन के फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एवरीथिंग इज इन द four walls of the academics. How much you step out and what kind of practical skills have been given. And that's why I think the self-talk की कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। That means is it personal or is it the institutional? It's institutional level. It's institutional level. I had written once on Facebook and LinkedIn also कि भाई आप जो है इसको psychology अगर आप पढ़े हो, this is a medical field. Mental health is much more complicated than your biology. Exactly. तो आप उसको पढ़ाने के लिए MBBS की तरह कोर्स करवाओ ना, 4 साल को पढ़ाओ, 2 साल इंटर्नशिप करवाओ, लोगों को भेजो फील्ड में, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स दो, हैंड्स ऑन स्किल्स दो, और 2-3 थेरेपीज में उनको स्पेशलाइज करो। इफ दे वांट टू बिकम अ थेरेपिस्ट, इफ दे वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, उनको उसमें ले जाओ। अगर वो जो है कॉर्पोरेट में ओबी पे काम करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काम करना चाहते हैं, तो उनको उसकी स्किल्स दो, उनकी ट्रेनिंग दो। तो साइकोलॉजी में तो इतनी वैरायटी पॉसिबल है, इतनी सारी फील्ड्स पॉसिबल है। इट इज नॉट ओनली थेरेपी, कोचिंग है, अब सारे आपके नॉन साइकोलॉजिस्ट आर बिकमिंग द गुड कोचेस। And I guess influencers are influencing a lot of more psychology. People don't want to come to us other than Instagram. Exactly. Even hypnotherapy. Yeah. I mean, अभी एक परसों ही मेरे पास एक क्लाइंट आई और बहुत बुरी हालत है उसकी, जो है उसकी फिजियोलॉजी हैज चेंज, उसका लोअर पोर्शन इज बिकमिंग हेवियर एंड अपर पोर्शन इज बिकमिंग थिनर। तो वो जाने किससे पास लाइफ करवा के आई, और जाने किससे हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी करवा के आई, हार गई। And then she said कि I decided कि I want a hypnotherapist who is also a psychologist. You don't find hypnotherapists who are psychologists. It's a good concept. तो अगर आपका basic strong नहीं है, and आप बन गए coach, आप बन गए hypnotherapist, and then so जिज्ञासा, there is lot of scope. Getting fun. Yeah. Good evening, ma'am. I'm Mrs. Vinita Roy. Again, a psychotherapist. Yeah. I work for the military hospital. Okay. Since you do hypnotherapy and you are a psychologist, what clues or what checklist would you give to a layman when they visit a psychotherapist? Because we will Google, we will take out a list of people, and we go. Really, list when I should go, or the list how to find a psychotherapist? No, ma'am. When we go, we are already there. We found shortlisted a list. But what is it that they need to check that? Actually, बहुत एक बेसिक, जो बहुत एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो ये है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो, स्ट्रेस मींस कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, फियर, फोबिया, एनीथिंग which I am finding difficult to handle, anger. अगर कोई भी चीज 15 दिन तक, लोग कहते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो, यू कैन डील विद इट, और इसकी वजह से लोगों को कभी भी लोग जाते नहीं किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास, मैं कमजोर थोड़ी हूँ, आई कैन डील विद इट। ये हम लोगों ने शुरू से मन में भर दिया। डॉक्टर्स के लिए ये नहीं भरा, फिजिकल डॉक्टर्स के लिए नहीं भरा, बट साइकोलॉजिस्ट के लिए या मेंटल इश्यूज के लिए ये भरा हुआ। स्टिग्मा है, बहुत भयंकर स्टिग्मा है। हम कोई पागल थोड़ी है, ये भी है कि अगर हम पागल हैं तभी हमें जाना चाहिए, which is not at all true. So फंडामेंटल ये है कि अगर 15 दिन तक आप कोई चीज अपने से डील नहीं कर पा रहे, जैसे 15 दिन का बुखार के आप लेके घूमोगे बिना डॉक्टर के पास जाए, तो अगर 15 दिन तक हमें लगातार डिप्रेशन चल रहा है, 15 दिन तक मेरा एंगर है जो मैनेज नहीं हो रहा है, डिप्रेशन है, एंगर है, गिल्ट है, शेम है, यू मस्ट कंसल्ट समवन। 2 weeks का बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है। Do I have the liberty to ask another question? Yeah, of course. I think she will get the liberty. Yeah, may I please? Since the person who is giving EMDR or hypnotherapy is first human and then a therapist, so they also go through a process of regular life. Like I'm sure life will have for me, even if I'm a psychotherapist, I will also go through phases of being happy, sad, turbulent.
depressive. The only difference between me and a layman would be I'll be able to identify it at the very first moment. So, how do you deal as a therapist to cleanse or baseline your aura to give the best output to the person who is receiving it? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स। एक तो ये है कि when you are giving a therapy, you should first clean yourself. आपका अर्थ मेडिटेशन है, यूनिवर्सल मेडिटेशन आपको करके तभी स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंडली, आपने ये जरूर पढ़ा होगा जब काउंसलर के जो दिए जाते हैं उसमें, you need to explore yourself and you need to clean yourself before you become a therapist, not only hypnotherapist, but before you become a therapist. Like we visit a psychologist ourselves. Yes, once a month. you must. For our own Around day will come here. to हाँ, refresh और ये जो आपकी seven minded mantras in हैं, a profession that we visit. yeah, seven minded mantras हैं, ये self help guide है। इससे बहुत कुछ, क्योंकि अब हमारे यही कोई मेरे को फेमस नहीं बनना था, मुझे कोई एज अ ऑथर बन के फेमस होने का बिल्कुल मेरा कोई पर्पस नहीं था, बट ये था कि हमारे पास, आपके पास 0.01 पॉपुलेशन भी नहीं आती, हेल्प मांगने आती है, नहीं आती, तो उन तक हम कैसे पहुंचे कि कुछ जो हम लोगों ने इतना सीखा है या छोटा मोटा जो भी ज्ञान हमारे पास है, क्या हम उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि जब आप 1-to-1 करें, then you find a magical change in the person. You find a magical change. फिर लगता है कि मजा आ जाता है खुद को। तो वो हम दूसरों तक, एक लार्जर पॉपुलेशन तक, मीडिया के थ्रू, बुक्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो पहुंचा सकते हैं। उसीलिए मैंने अपना चैनल भी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शुरू किया, जिससे जो भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बोल सकूं, जिस तक भी पहुंच जाए, कुछ न मिले पॉपुलैरिटी, इट्स ओके, एक व्यक्ति को भी अगर असर हो जाए, then it's achieved. You have achieved. Thank you. More questions coming? Yeah, that's one. Can you pass to the gentleman, please? मेरा नाम आशीष है और मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग, कम चैलेंजिंग है ये बात फिर। मैं ऐसा देखा हूँ कि आप काफी इंस्पायरिंग हैं और आपने सबसे पहले तो इंस्पायर अपनी एज बता के कर दिया है, जिसमें से -20 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट आप हैं, जैसे क्लींजिंग के लिए आपने बताया, सेल्फ क्लींजिंग आपने कहा, और लेखक हैं, आप लेखिका हैं, आप साइड काम करते हैं, तो आप दर्द समेटते हैं सारी दुनिया के, समाज के, ये दोनों एक डाइवर्स काम है जो एक साथ आप करते हैं। मेरी एज 53 है सिर्फ, इसमें से मैं -20 भी कर लेता हूँ, सेम फॉर्मूले। मेरे और आपने एक चीज कॉमन है कि हम दोनों प्री स्क्रीन एरा में पैदा हुए थे। Yeah, definitely. तो पैदा ही नहीं हुए, बहुत साल तक प्री स्क्रीन में। बिल्कुल पैदा परवरिश जो हुई गई। तो मेरा सवाल दरअसल ये मैम कि जिस तरीके से आप प्रोफेशनल लेवल पे हो या फिलैंथ्रोपिक लेवल पे हो, जब आप सेशंस लेते हैं, जनरली देखिए, मैं सिर्फ मेंटल इश्यूज की बात नहीं करना चाहता, एक आम आदमी की बात करूँ तो मनोभाव बहुत जल्दी चेंज होते हैं। हम आज किसी तरीके से सोचते हैं, कल दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आज मेरे पास कोई एक चीज है सोचने के लिए, मैं उससे बेहतर होकर कल करता हूँ, ये अच्छी बात है, न सिर्फ मेरे एज एन इंडिविजुअल, समाज के लिए। तो ये चेंज इनोवेटिव है और ये बहुत फिजिक ऑर्गेनिक है। जब आप सेशंस लेते हैं तो बहुत जेनरिक बातें कर रहे होते हैं, जब अभी आप सेशन लेंगे तो बहुत जेनरिक बातें कर रहे होते हैं कोई भी के लिए, क्योंकि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को असेस नहीं कर रहे। जब आप थेरेपी ले रहे हैं तो आप शायद थेरेपी में बहुत स्पेसिफिक हो रहे हो, और इस तरह के जब सेशंस ले रहे होते हैं जो कि बहुत जेनरिक टर्म्स हैं, जैसे आप किताब लिखते हैं तो किसी एक के लिए नहीं, और ये सिर्फ एक ही बात नहीं, मैं बुक की बात करूँ, किसी भी किताब की बात करूँ, जनरल बात करूँ, तो वो जब बात करते हैं आप तो स्पेसिफिक नहीं होती है। मेंटल इश्यूज ऐसी चीज है मैम की बड़ा डायनामिक सा चीज है, जैसे मैंने बोला कि बदल रहे हैं, तो क्या इस तरीके का जनरल स्टेटमेंट आम इंसान के लिए जो मेंटल इश्यूज जोन में नहीं है, हालांकि हो सकता है कि इतने साइकोलॉजिस्ट बैठे आपको इतने लर्नेड हैं, कह सकते हैं कि नहीं भाई सभी बीमार हैं थोड़े बहुत, नहीं, हम किसी को बीमार नहीं कहना चाहते, हम किसी को भी बीमार नहीं कहना चाहते। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एक कि क्या जब ये जनरल इस तरीके की चीजें होती हैं तो हम बाकी इफेक्टिवली कर पाते हैं, क्योंकि मैडम जो आप अच्छी चीजें बताते हैं वो तो आपको बहुत तरीके से अच्छी लग रही होगी और हमारे लिए बैक ऑफ माइंड अच्छी होती है, तो इसलिए हम इंस्पायर भी या इन्फ्लुएंस भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, एक चीज। मगर हाउ टू डू दैट में जब करें तो हम क्योंकि अपने ही मर्ज के बीमार होते हैं, अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, तो हम उन चीजों को बदल नहीं पाते। I can understand what you are trying to ask, and मैं
मुझे लगता है इसका आंसर उन्नति जी बहुत बढ़िया देंगी, बिकॉज इन्होंने किताब पढ़ी है। और आपको क्या लगता है कि ये जो किताब, जैसे उन्होंने कहा कि जनरल है बट है मेंटल हेल्थ नहीं, इट इज इसका जो टाइटल है ना, 7 माइंडी क्योर मंत्रास फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेशेंस, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज है, आप अगर बुखार भी है तो आपको हेल्थ चाहिए, है ना। तो आप किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी स्टेज में, यू वांट टू इम्प्रूव। अब उन्नति जी इसको बताएंगी ये कितनी स्पेसिफिक और कितनी जनरलाइज्ड है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, बट डज इट अप्लाई टू अ लार्ज पॉपुलेशन? दो वी आर टॉकिंग अबाउट specific issues, specific examples, but how it is very generic as well as very specific. So I want to enlighten this thing. Yeah. So it is very generic and very special also. For everyone it's written because lot of stories are there. I always think हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी कोई हमें सुनने वाले नहीं होते। कई बार हमारे दिमाग में कई चीजें चल रही होती हैं, कोई हमें सुनता नहीं है। मम्मी के पास गए तो उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद आना, कुछ काम है मुझे, या कहीं भी किया। इस बुक में बहुत अच्छा सेल्फ टॉक जो उन्होंने बताया है, मुझे इसीलिए ये पसंद आया कि समटाइम अगर वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ आल्सो, देन आल्सो वी टेक आउट सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड वी गेट द सॉल्यूशंस for that. So this is a very generic book for everyone. It is specific, no doubt, but it is generic for everyone because each and everyone is going through those stories which are here. Those stories तो मुझे लगा शायद मेरी stories थे उसमें. I thought that way. Yeah, it connected to me. Like जैसे मैंने बोला कि आज मैं वो लेके जाऊंगी कि ये मणिधर मिलता है ना, वो विश्व को भी अमृत कर देता. I really like that thing. बहुत अच्छा लिखा हुआ पहले से था, but समझा आज उसको. तो समझने की बात है. Sometimes we know something, but we don't understand. So the way we understand this book really help us how we have to talk to ourselves. Self-talk जो word आ रहा है, सुनने में बहुत easy है, but जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे आपको improvise करना है. So और ये जो है इसमें आप जब इसको पढ़ेंगे, एक्चुअली जिन्होंने पढ़ा है वो इसको बता पाएंगे, तो आप उसको अपनी लाइफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट कर लेंगे और आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उससे आप खुद उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे. तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर. सर आप हिप्नोथेरेपी करा सकते हैं मैम से. मेरा दूसरा सवाल है मैम, जो फियर बेसिक इंस्टिंक्ट होता है किसी भी ह्यूमन के लिए, अब इसमें फिर से मैं मेंटल इश्यूज जोन से बाहर खड़ा हूं, नॉर्मल बात करना चाह रहा हूं. फियर को लेके आप चाहे इस बुक के कंटेक्स्ट में या मैंने बुक नहीं पढ़ी है, मगर जो भी आपका विचार है, तो फियर को लेके आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए फियर जो है मेनली फ्यूचर के लिए होता है. फियर इज नॉट फॉर पास्ट के लिए अपसेट हो सकता है, दूसरे इमोशंस होते हैं, बट फियर हमेशा फ्यूचर के लिए होता है. तो आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं? फियर, अब मान लीजिए हमको फियर है, फियर फोबिया में बदल सकता है, या फोबिया वैसे इरेशनल फियर होता है एंड फियर हैज सम रैशनैलिटी. अब घर से बाहर बच्चा निकला मोटरसाइकिल लेके और हमें फियर हो रहा है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं वो जो है तेज ना चलाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, या हम इंटरव्यू में जा रहे हैं फेल ना हो जाए. और बहुत बार हम इंटरव्यू में नहीं जाते थे. मेरे संग एक इंटरव्यू था एंड आई वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो और सीनियर पोजीशन के लिए था, बट मुझे लगा और भी लोग आएंगे, कहीं अगर मुझे इन्होंने नहीं सेलेक्ट किया तो आई फील वेरी ह्यूमिलिएटेड. मैं गई ही नहीं उस इंटरव्यू. आई डिडंट गो इन दैट इंटरव्यू. सो दैट फियर ऑफ फेलियर स्टॉप्ड मी टू बी प्रेजेंट इन दैट इंटरव्यू. और वो 2 साल बाद वो मिले, बोल मैडम हम आपका वेट कर रहे थे, आपके लिए वो पोजीशन रिजर्व थी, आप आई क्यों नहीं? सो बट हमारे फियर ने हमको वहां जाने ही नहीं दिया. तो आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछना ये चाह रहा था, जैसे अभी थोड़ा सोसाइटल टेंडेंसीज की बात हुई थी, मेरा कोई कंसर्न कभी भी नहीं रहा सोसाइटल टेंडेंसी से, ना मैंने कोई नजदीक में ऐसा देखा. बट पॉइंट इज कि फियर एक बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, कॉमन नहीं, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं कि फियर तो मेरा सर्वाइवल मैकेनिज्म. यस, फियर इज योर सर्वाइवल मैकेनिज्म. जब तक फियर आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए मोटिवेट, जैसे जब तक फियर इज आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेस. ओके, स्ट्रेस एक ऑप्टिमल लेवल होता है, उसके बाद वो ऑप्टिमल लेवल पे जब जाता है तब आप मोटिवेट होते हैं. आपको एग्जाम में आप पहले दिन से कहते हैं 10th में आई इस बार मैं पहले दिन से पढ़ूंगा, बट आप नहीं पढ़ते क्योंकि कोई फियर नहीं है एग्जाम का. जब एग्जाम पास आने लगता है तो आप मोटिवेट होने लगते हैं, फियर थोड़ा बढ़ता है, एक ऑप्टिमल लेवल तक गया और आपने पढ़ाई शुरू कर दी. बट अगर वो इतना बढ़ जाए कि आपके हाथ पैर कांपने लगे, बीपी बढ़ने लगे,
और आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे, फियर उस लेवल ऑप्टिमल से ज्यादा हो गया, तो आप नॉन फंक्शन। स्ट्रेस तो अभी भी है, स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस इज योर फ्रेंड, वी हैव मेड देम एनिमी। सो कब तक हम उसको फ्रेंड बना रहे हैं और कैसे हम एनिमी को, हाँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर। Thank you. आप अपने आपका माइक है, सॉरी, आपका माइक भी कर देगा। Any question? Yeah. जी नमस्ते। My question is very simple. आप बोलते हैं everything is about energy vibrations, right? So to deal with situations in day-to-day life, may it be छोटा मोटा stress हो, tension हो, how do we strengthen our own energy? अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दे दो तो मैं स्पेसिफिक आंसर दे दूं, मैं जनरलाइज पूछूं तो मैं जनरलाइज आंसर दूं। Okay, like okay, I'll give my own example. ओके, When it comes to my work, my energy is very high. I put my mind, soul, and everything I do it for family, for work. But when it comes to my own health, my energy is very down. I'm not able to control myself in certain ways, in certain things. So I want to strengthen my energy when it comes to certain things in life. स्पेशली रिलेटेड टू योर हेल्थ। हाँ जी। तो आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड आप खुद से क्या बातें करते हैं? हैव यू एवर नोटेड डाउन? आप आज से अपने जर्नल लीजिए, उसमें लिखना शुरू करिए आपकी प्रायोरिटी में है कि नहीं वो है, या आपका कोई पहले इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद अपनी सेल्फ टॉक को एनालाइज करो, लिखना शुरू कर दो कि आप हेल्थ के बारे में आपसे खुद से क्या बातें कर रहे हैं। जैसे आप लिखोगे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों मेरी यहाँ पे एनर्जी कम है और क्यों वहाँ पे ज्यादा है। Sometimes we know the reason भी पता है, but वो तब हम आपको पर्सनली आपसे बात करनी पड़ेगी। यही सुनना था। I want to come to you personally. And one more very short question. I have heard and I have seen जो पानी आप पीते हैं उसमें आपकी पूरी एनर्जी जाती है, right? And बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी भी ग्लास में अगर पानी पिए तो उसको छोड़िए मत. You should drink the entire glass. Okay. Because if you leave water, you leave a certain energy in it. Is that true? Because I end up drinking a lot of water. बहुत सारी theories, बहुत सारी चीजें हैं. एनर्जी हर जगह है जी. अगर कोई कह रहा है उसमें एनर्जी है मत छोड़िए, तो आई थिंक दिस इज डबल एडवांटेज कि आपको पानी वैसे भी नहीं वेस्ट करना चाहिए. जो थोड़ा लीजिए और थोड़ा पी लीजिए, ठीक है. बट यहीं पे आपको मेरे को एक और मंत्र याद आ गया. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक व्हिच यू कैन यूज इन योर लाइफ. जैसे आपका हेल्थ का गोल है जी, तो आप आपका क्या है? आई वांट टू बी हेल्दी, स्वस्थ, कुछ आपके वर्ड्स होंगे, गोल होंगे ना, बट पॉजिटिव वर्ड्स जी. आई वांट टू बी फिट. नेवर से आई डोंट वांट टू फॉल सिक. Yeah, I don't want to be unhealthy. Don't use these words. So you are inviting. Yeah, you are inviting. Word is again powerful. Universe not की language नहीं जानता है. तो आप words ले लीजिए, जैसे fit, slim अगर आप लेना चाहती हैं, आप already slim है वैसे तो. Fit, slim, healthy, smart, whatever you want to take. Pick up those words. रात में आप पानी की बोतल अपने बगल में रखती हैं कि नहीं? जी, रखती होंगी. हाँ जी. उस बोतल के ऊपर ये words लिख दीजिए. Okay. Write those words over the bottle. Okay. In the night, it's going to absorb the energy of these words, and in the morning, आप वो words बोल के आराम से enjoy करते हुए पढ़ लीजिए. Wow, that's beautiful. So any goal that you have, you just write those words on your water bottle. आप पिलो का सबने देखा होगा, पिलो को कह के सोएंगे, सुबह 5 बजे जगा देना. कितने लोगों ने ये ट्राई किया है? बहुत लोगों ने किया है. तो आप पिलो में भी चिट डाल सकती हैं, तो वो भी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी. Thank you so much, ma'am. Since a long time I'm thinking वो glass आप खत्म करेंगे उसमें कितनी energy होगी. You're talking so she it is full of energy. Thank you, ma'am. Thank you so much. यहाँ जोड़ना चाहती हूँ आपकी बात में. Like I want to add on little bit here. She has explained very beautifully. पुराने जमाने में जब भी यज्ञ होते थे, पूजा होती थी, जो ऋषि मुनि होते थे कमंडल में पानी रखते थे और सारी एनर्जी उसमें होती थी. वो किसी को आशीर्वाद देते थे, पानी छिड़कते थे. और जब वो किसी को श्राप देते थे, पानी छिड़कते थे. तो वाटर की एनर्जी उसमें स्टोर होती है. इसीलिए जब आप पूजा करते हो वो पानी पौधे में मत चढ़ाइए,
could be. Could be. You get all that and complete energy. Thank you so much for such beautiful example. Yes, especially पौधे में पानी डालना. अक्सर लोग वो पानी को तुलसी में डालते हैं. आप पीछे आपके लिए full energy is inside. आप कोई पूछना चाह रहे हैं? You give an example for gender neutral world. Gender neutral. Correct. Gender biases we were talking in between, and then you mentioned about Walkman, history, something correct, gender bias. Rashtrapati. You gave a very classic example, and then you spoke to Kalam Saab also about it. Right. But we are in a world where the colors are also identified with the gender, like pink is for girls, blue is for boys. ये तो सब हम ही ने बनाए हैं. हम ही ने बनाए हैं. But it's been close to like good 2 decades you have reflected on this पूरे thought. मेरे से पता नहीं कब से है ये. हाँ. But आप मेरे से आप बोल रहे हैं. so do you see any sort of a change towards the Actually, neutralization I of started this? thinking about it when I was doing international organization में मैं gender training बहुत करती थी. और फिर अपने वहाँ पे जब मैं काम भी करती थी तो 90s से इस पे काम कर रहे हैं. तो आपका क्वेश्चन क्या है? How young parents can try and develop this thought process with the kiddos for the future that they should think gender neutral. There is gendering, इसको बोलते हैं gendering of development. आपने बचपन से लड़के को दिया गन दिया, लड़की को दिया गुड़िया, उसको पिंक दिया, उसको ब्लू दिया, उसको तो हम उनकी जेंडरिंग का स्पेस की जेंडरिंग करते हैं, ड्रेस की जेंडरिंग करते हैं, हेयर स्टाइल की जेंडरिंग करते हैं, हर चीज की जेंडरिंग करते हैं. तो वो जेंडरिंग जब हमारे हम लोग खुद भी जेंडर्ड हैं, हम लोग कितने ही फेमिनिस्ट हो जाए कुछ हो, पर हम पेट्रियार्किकल सिस्टम में पढ़े बले हैं और अभी भी हमारे में है. हमारे में अक्सर बहुत कॉन्शियस होने के बाद भी जब हम कुछ भी बात करना शुरू करते हैं ही से शुरू कर देते हैं. कॉन्शियसनेस है तब भी ही से शुरू कर देते हैं क्योंकि इतनी पुरानी सदियों की The conditioning has been done that phase, right? जेंडरिंग है हमारे दिमाग की. Even the word Collective conscious. the word victim is also gender biased. Victim अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले victim कौन होगा? Lady. और victim are men also. So victim is also a gender bias. जब मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, चूड़ियां पहन रखी. I don't know why this has been given. तुमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? क्यों? Why? ये एग्जाम्पल आपने दिया ही क्यों? इस तरह की बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं जिनमें आप देखेंगे जेंडरिंग करते हैं और वो जेंडर कॉन्सेप्ट से निकले. No, but my question is that like what sort of a development the young parents can do with the kids so that the future society बहुत will लंबा become टॉपिक है. अगर हमने इस पे बोलना शुरू maybe किया तो two highlight Are you points. ready for 3 hours? Two highlight points if possible. क्योंकि वो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है. ये अभी पेरेंट बने हैं. Actually try to use, अगर 2-4 शब्दों में बोले तो आप उसका माहौल जो है अपने घर का माहौल उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो. आपके और आपकी वाइफ के बीच में जो इंटरैक्शन है उसमें किस तरह का इंटरैक्शन है, किस तरह की रोल मॉडल्स आप वहाँ दे रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है. जो अगर अल्कोहलिक फादर होते हैं, बच्चा कहेगा मैं अल्कोहलिक कभी नहीं बनूंगा. End up being alcoholic. End up being a woman beater if the father is like that. Unconsciously he is saying I will not. Yesterday we were talking. So जब gender roles आपकी फैमिली में है ना उस पे फोकस करें. अगर आप वहाँ पे equality, if you start, I mean I'm not saying you, any man, if any man starts giving respect to the wife, because most important is respect. सबसे बड़ा इमोशन जो है वो एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट का. प्यार से बड़ा है. तो अगर आप रिस्पेक्ट देंगे अपनी वाइफ को, योर चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न. मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी इतना ज्यादा तुमने जेंडर सिखा दिया मुझे कि अब मैं किसी लड़की के पास से निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है कहीं क्राउड में कहीं मैं छू ना जाऊँ या कुछ ना हो जाए, या आई बिकम सो कॉन्शियस. तो वो आपको वहाँ से जेंडरिंग शुरू करनी पड़ेगी, वहाँ पे उसको सिखाना पड़ेगा. एंड आई एम हैप्पी दैट ही गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज वाइफ. And I'm also, because my husband gave a lot of respect to me. आजकल बल्कि डॉक्टर में भी लोग चाहते हैं कि फीमेल डॉक्टर हो जब डिलीवरी होने हो, which is not right. Doctor is doctor. Doesn't matter. Any last question? Hello ma'am,
I'm Jagriti. I'm a teacher and a students counselor. So in the field of education, psychological perspective of education, it's very important to understand the well-being of student. Yes. आज क्या हो रहा है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों के इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहते या करते हैं पर एडमिट नहीं करते कि उनके बच्चे किसी तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी या बिहेवियरल चेंजेस से गुजर रहे हैं। मेरे लिए उनको पहली बार समझाना मुश्किल हो जाता है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करें। आफ्टर दैट, जैसे आपने कहा मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, मैं आपसे ये सीखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि ये जो यंग माइंड्स हैं, अगर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप ओम उच्चारण करिए, करवाइए या बच्चे को 2 मिनट आंख बंद कर बैठने के लिए बोलिए, तो उनका तो जो स्पैन है वो भी इतना शॉर्ट है कि वो नहीं कर पाते। तो आपसे थेरेपी तो नहीं, बट एक एडवाइस जो मैं उन बच्चों को दे सकूं, उनके पेरेंट्स को समझा सकूं, जो देखिए सबसे ज्यादा तो जो छोटे बच्चे होते हैं, आई डोंट नो किस एज के बच्चे बात नहीं कर रही है, 6 to 15 years 6 to 15 years में you need a lot of therapy of the parents, but are they ready? They are never ready. They will never take that. Owning the responsibility is never there. अगर आप किसी से कहिए कि मैं पहले आपसे बात करना चाहती हूँ, पहले मैं आपको समझना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली में कम्युनिकेशन को कैसे चेंज करें, दे आर नॉट करेंगे। मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, टीचर को भी जाके बोलेंगे आप इसको संभालिए, आप इसको मारिए पीटिए, जो भी करें मैंने आपको दे दिया। सो दे अगेन वो जो आपने अभी बहुत सुंदर से आपने मुझे ही बताया और owning the responsibility has potential, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन पेरेंट्स नहीं करते, जो आपने बहुत सही बोला, बट इसको ग्रेजुअली हमें समझना पड़ेगा कि आप ओम पहले कहना बोलेंगे, इंसिस्ट करेंगे तो नहीं होगा until unless it is a part of their family system। अगर पेरेंट्स ही ओम नहीं करते तो बच्चा कहाँ से करेगा? नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके कुछ ग्रुप क्लासेस चलते हैं, स्कूल में चलते हैं, तो आप उसको सिखा सकते हैं, तब वो कर सकता है। तो आप ग्रुप में सिखाएंगे, बच्चा कर लेगा। So I think you should have group classes. एक बड़ा अच्छा उदाहरण है लास्ट वर्ड ऑफ थैंक्स देना है। लाइक एक टैबलेट लेडी आती थी हमारे पास, उनको नींद की प्रॉब्लम थी, सोती नहीं थी वो, उनको नींद नहीं आती, वो क्या करती है, मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ, माइंड और एक्टिव हो जाएगा आपका, आप गेम खेलेंगे तो माइंड एक्टिव होगा कि आप सोओगे। तो हमने बोला मत खेला करो, उससे दिक्कत होगी, वो नहीं मानी। और 1-2-3 लोग और भी थे, उन्होंने बोला, हमने एक दिन उनको ऐसे ही बुलाया, मैंने कहा प्लीज कम, विल हैव कॉफी। एक बहुत अच्छी कॉफी मशीन आई है, एक नई कॉफी पीते, वो लोग आए बैठे, मैंने एक छोटे से रखी थी चॉकलेट जैसी, मैंने निकाली और फिर उसको च्यूइंग करना शुरू किया। क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, एकदम से पूछा उन्होंने। हम ये इतना अच्छा, जैसे इसको खाते हैं ना, एकदम से अंदर दिमाग में ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छी सुंदर सी पिक्चर चल रही है, बड़ा अच्छा सा लगता है, जैसे लोग जो मतलब एक लगता है अंदर से मेडिटेशन में जो फीलिंग आता है वो आता है। और ये क्या, ये हमको भी दीजिए, दैट वाज नथिंग, दैट वाज स्लीपिंग। यस, और उन्होंने लिया उसको, और फिर उसको पहले उनको लगता था दवाई है ये नहीं खाना चाहिए, पर क्योंकि हमने उनको एक एग्जांपल दिया बिना बोले, बिना किसी चीज को सेट किए। तो अगर हम कभी भी एग्जांपल सेट करें किसी के सामने, जैसे कोई भी आ रहा बोलते पानी पीना चाहिए, अगर हम एक पानी पी करके रखे, उसको भी प्यास लगेगी, हमको भी एक ग्लास पानी पिला दीजिए, तो बेटर है हम पहले उन चीजों को प्रैक्टिस करें बजाय किसी को बताने के लिए। बोलते हैं ना कि घर में भी घर का दिया जलाकर मंदिर का तुम जलाना, तो सबसे पहले अपने घर का, अपने अंदर का हम चेंजेस करें और खुद के साथ करें। एक आपकी बात में बहुत अच्छी बात छुपी हुई है कि अगर हम दिमाग में कुछ डाल दें, एक्चुअली हिप्नोथेरेपी में भी यही होता है, अगर आपने दिमाग में उनके डाल दिया कि ये जो है इससे नींद आती है, ये मेडिटेटिव आपने कहा चॉकलेट है, तो ये क्या हुआ आपके दिमाग में चला गया। अभी जैसे अभी रिसेंटली हम पढ़ रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनको ऑपरेट करना था और वहाँ पे मॉर्फिन नहीं थी, एनेस्थीसिया नहीं था, और उन्होंने पेशेंट से कहा कि आई एम गोइंग टू गिव यू मॉर्फिन एंड यू विल हैव नो पेन। और ये हिप्नोथेरेपी में जो सर्जरी होती है हिप्नोथेरेपी में, उसमें आपको बिना एनेस्थीसिया के आपको एनेस्थेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि माइंड ने एक बार कह दिया फिर उसको इंजेक्शन लगा दिया। वो भी आपने सुना होगा ना कि चलिए दूसरा एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी। अगर आपने माइंड में डाल दी कि मैं आपको मॉर्फिन दे रहा हूँ और आपने प्लासिबो की सुई बस चुभा दी और उसको लगा कि मुझे मॉर्फिन मिल गया, माइंड ने कहा तुम्हें मॉर्फिन मिल गया, तुम्हें अब दर्द नहीं होगा, तो आपके जो सीक्रेशन, इट इज नॉट जस्ट साइकोलॉजी,
इट इज फिजियोलॉजी, बिकॉज जो एनेस्थीसिया में जो हार्मोन्स रिलीज होते अब वो रिलीज होने लगेंगे, तो वही रिलीज होगा जो एनेस्थीसिया देने पे रिलीज होता है। आपके माइंड ने वो हार्मोन्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने शुरू कर दिए और आपकी बॉडी में एनेस्थीसिया आ गया और अब ऑपरेशन हो रहा है और आपको फील है। So that is the power of mind which we are not using. हम अपने 5-10% माइंड में फंसे हुए हैं, 90% को हमने छोड़ रखा है और इसीलिए बहुत जरूरी है। तो ये जो किताब है ये एक समझ लीजिए आपकी सेल्फ हेल्प के लिए, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ चॉइस दैट प्रैक्टिकली यू कैन गाइड योरसेल्फ। और आपको ज्यादा कुछ करना है तो फिर आप इंडिविजुअली, लेकिन जमाना ऐसा है कि किसी को कोई चीज सजेस्ट करके पानी पी लो तो लगता है शायद इनका कोई फायदा होगा, जो हमको पानी पिला रहे हैं। आपको किसी ने बोला है कि कैसा हो तो आप पानी लीजिए। एंड आई वुड लव टू इनवाइट हमारी आज की होस्ट है सुचित्रा साजिद धनानी जी, आके आपको मोमेंटो दें, क्योंकि आपने इतना सुंदर। इससे पहले मैं एक्चुअली पीके फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूंगी। आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड to be a part of this PK Foundation family। मुझे लग रहा था बड़ा फॉर्मल सा होगा, बट इतनी फॉर्मल, एकदम फैमिली लाइक की जो आपने एम्बियंस और जो कनेक्शन क्रिएट करा, आई एम ट्रूली थैंकफुल। एंड PK Foundation कंफर्ट आपसे आया हमारे पास जी, you gave that comfort। PK Foundation is changing countless lives through culture, music and social work. So we all are indebted to PK Foundation. They have established it and they are doing such a wonderful job. And thank you for making a part of your family. Thank you so much. I would love to sit down to take her. And Surbhi, you also please come, our Ehsan women. Oh, so nice. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Oh, Rajasthan. Thank you so much. Now, I would invite Suchitra Dhanani ji, Suchitra Sajid Dhanani ji, to give a thank you note. On behalf of Prabhaketan Foundation, I, Suchitra Dhanani, Ehsan Women Indore, thank you all for being a part of this wonderful, wonderful evening. I would like to thank our guest, Professor Manju Agarwal, in one of the most interesting sessions that we have had today. Thank you so much. Our sincere thanks to our hospitality partners, Saji Hotels, and to Shree Cement for their support, and our great partner, Thank you very much.